सो भाई 60 लाख नो स्किल एजेंसी सीडी प्लेयर डीवीडी प्लेयर। हेलो गाइस, ये है नो स्किल एजेंसी। ओ मैन, अरे सुनना बंद हो गया रे। इतना क्यों चिल्ला रहे हो और मुंह पर भी थूक रहे हो? जो इतना चिल्लाए ना मेरे मुंह पे, मैं उसकी बात तो वैसे ही ना सुनूं। Anyhow, let's focus on today's video and the product that I have brought for you. Is money burning a hole in your pocket? क्या आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा अच्छा नहीं लगता? तो जल्दी से मेरी वर्कशॉप ज्वाइन करो, जिसमें मैं आपको मात्र 7.5 में कुछ नहीं सिखाऊंगा. I'll waste your time and make you regret why you joined this workshop, and on top of that, I'll upsell another workshop which would be even more expensive. Does this ring a bell? आजकल इतनी एड्स चल रही हैं यूट्यूब पर, कोई AI सिखा रहा है, तो कोई स्टॉक ट्रेडिंग, तो कोई ड्रॉप शिपिंग. आज मैं बात करूंगा ऐसे इंसान की जो आपको लाखों रुपए कमाने सिखाएगा, और वो भी बिना किसी स्किल के. नो स्किल एजेंसी बाय जीत शाह. This guy will fuck up your eardrums by shouting at you and tell you that drop servicing is the best way to earn money. इस बंदे का दावा है that you don't need any skills to make this happen. बस क्लाइंट पकड़ो और फ्रीलांसर पकड़ो और प्रोजेक्ट डिलीवर कर दो, बीच में से अपना प्रॉफिट ले लो, बस सिंपल. और इज़ इट? तो चलो आप और मैं मिलकर रिसर्च करते हैं एंड देखते हैं कि भला चल क्या रहा है. इस सफ़र में सबसे पहले आप और मैं थोड़ा इस बंदे को और इसके प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं, नो स्किल एजेंसी को. आज नहीं तो कल कोई भी टेक्निकल स्किल्स रिप्लेस हो जाएगी. First off, one of the major points that he focuses on is to not learn any skills, or in his words, don't learn any technical skills. और उसका रीज़न क्या है? That AI will replace everyone. This may be true. AI has the capability to disrupt the industry, but there are so many things wrong here. एक तो इतने सारे mentors and coaches AI को scapegoat बना देते हैं कि कुछ और नहीं मिला तो AI को blame कर दो. Get your facts right first. I seriously dislike such mentors. अब एक वीडियो देखते हैं इसकी. लेके चलता हूँ इंस्टा मोजो में, ऊपर आपको नाम भी दिख रहा होगा जीत शाह. मैं एक बार आपको मार्क कर देता हूँ. इस महीने का जो रेवेन्यू है हमारा वो है तकरीबन फरवरी महीने का. गाइज, इस वीडियो में कुछ नोटिस किया? I'll pause the screen here. अगर किया तो कमेंट्स में बताना, और वीडियो पूरी ज़रूर देखना क्योंकि थोड़ी लंबी चर्चा होगी और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इस स्पेसिफिक फ्रेम में क्या देखना था. तो अभी बात करते हैं AI की. चैट GPT वगैरह बहुत कुछ चलता है. सबसे पहले AI doesn't have the latest data. It is mentioned on OpenAI's website that GPT-4 generally lacks knowledge of events that have occurred after the vast majority of its data cutoff, जो September 2021 है. And it also does not learn from its experience. तो जो भी डेटा आफ्टर सितंबर 2021 है, जो भी वर्ल्ड इवेंट्स हैं, जो भी नॉलेज है, वो AI के पास नहीं है, बिकॉज दैट वॉज द डेटा कट ऑफ डेट. So in case one of your clients wants the latest and the greatest, then how can you use AI for that, or how can you use ChatGPT for that? You'll need someone who has a handle on that tech or skill. दूसरी बात, he also uses scare tactics, which is a standard for such charlatans and snake oil salesmen. Look at this headline that he shows in the video. I did some digging around and found the exact article, and it's exactly as I thought. It turns out it has nothing to do with AI or firing people with skills. There are multiple reasons behind this जो जीत शाह की समझ में नहीं आए, because you are being an ass and using this to scare students and people to sign up for your workshops, और उन्हें गुमराह कर रहे हो. Shame on you. These IT companies had nothing against skill labor, or maybe they were following the जीत शाह no skill agency. शायद जुकी भाई को जीत शाह की वर्कशॉप पसंद आई. ऐसी थोड़ी इतनी यूनिवर्सिटीज़, इतने कोर्सेज, इतने सर्टिफिकेशंस चल रहे हैं, राइट? I don't mean to make fun of firing. I know it is hell for the person who gets laid off. So, no fun in that. Chalo, back to the point. They had to fire people due to the economic ramifications of the post-COVID era. Spending patterns changed. This mass firing is because of financial reasons, not AI, not a vendetta against skilled people. During COVID, सब work from home या remote work कर रहे थे, and companies invested in that and in those tools. But अब post COVID, जो इन बड़ी IT companies के customers हैं, they are restructuring their expenses because अब इतनी investment is not required to make remote work happen. Return to office हो रहा है, many employees are going back to the office. तो remote work
कम हो रहा है, उसकी वजह से स्पेंडिंग पैटर्न्स हैव चेंज्ड। और इसका क्या फॉल आउट हुआ? इट अफेक्टेड बिग IT कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, फेसबुक एट्सेट्रा। तो ऑफकोर्स जिस स्केल पर इन्होंने हायर किया उसी स्केल पर दे हैड टू फायर पीपल अनफॉर्चुनेटली। एंड दूसरी बात, दिस हैपेंड इन द US, नॉट इन इंडिया। इस मास फायरिंग में मोस्टली इंडियन पीपल विद H1B और L1B US वीज़ा इम्पैक्ट हुए हैं। एंड एज पर लेबर लॉज, hiring laws, visa laws of the US, they want local people, yani US residents, to get jobs first. And this is true for actually any government. पहले local hiring करनी पड़ती है, and if there is no skilled labor available, then you can hire from overseas. फिर visa and all the process around it is justified to the government and the border authorities. जाहिर सी बात है that कोई भी गवर्नमेंट यही करेगी, पहले मेरे लोगों को यानी लोकल रेजिडेंट्स को रोज़गार दो एंड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस यू कैन हायर फ्रॉम अब्रॉड। बट ये बंदा इज़ यूजिंग दिस फॉर स्केरिंग स्टूडेंट्स टू मिसलीड देम। शर्म करो यार, एक स्टूडेंट की सिचुएशन इज़ डिफ़िकल्ट। यार मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, कैंपस प्लेसमेंट देखी है, एंड आई नो हाउ इट फील्स कि जब कैंपस प्लेसमेंट में आपके फ्रेंड्स को नौकरी मिल जाती है लेकिन आप खुद रह जाते हो। आई नो दैट फीलिंग। कोई बेचारा स्टूडेंट इस सिचुएशन में है, घर की रोज़ी रोटी का सोच रहा है एंड इज़ थिंकिंग ऑफ पेइंग ऑफ द एजुकेशन लोन हिज पेरेंट्स टुक, और उस बंदे या बंदी को तुम टारगेट कर रहे हो। दिस इज़ डिस्पिकेबल, लोएस्ट ऑफ द लो। अब मैं बात करूँगा उस इनकन्सिस्टेंसी की जिसकी वीडियो में पहले बात की थी। ये दो एंट्रीज देखो ज़रा, ₹197 एंड ₹9। दीज आर एंट्रीज फॉर अर्निंग्स फ्रॉम कोर्सेज। ये कोई सिर्फ नो स्किल एजेंसी से कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये सब मिलाकर दिखा रहा है। ही इज़ शोइंग फ्रॉडुलेंट स्टफ एंड टॉकिंग नॉन सेंसिकल फ्रॉडुलेंट थिंग्स कि मैंने ये नो स्किल एजेंसी से कमाया है, दिस इज़ नो स्किल एजेंसी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोई क्लाइंट ₹9 की पेमेंट करेगा क्या? UPI खेल रहा है क्या वो? अब देखते हैं इसकी राय टू इम्प्रेस अ क्लाइंट। और आप इसी पर्सन के टेस्टिमोनियल जो कि ऑलरेडी 10 साल से मार्केट में है, आप इसी पर्सन के सारे प्रूफ, इसी पर्सन की सारी एक्सपर्टीज आप यूज करते हैं। तो क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए तुम किसी और बंदे के प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो को अपना पोर्टफोलियो बोलकर दिखाओगे। दिस इज टोटली फ्रॉडुलेंट। यू आर कमिटिंग फ्रॉड, यू आर लाइंग टू दैट पर्सनस फेस। अभी ये बंदा कह रहा था कि नो स्किल्स आर रिक्वायर्ड, एंड नाउ ही इज टेलिंग यू टू लाई थ्रू योर टीथ दैट जो काम आपने नहीं किया उसे अपना बताकर बेच दो। एक क्लाइंट के साथ डील शुरू होने से पहले ही झूठ बोल रहे हो, तो सोचो आगे क्या क्या होगा। एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच आपको गलत रास्ते पे नहीं डालेगा। ऊपर से व्हेन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो बाकायदा एक स्कोप ऑफ वर्क तैयार होता है। व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट स्पेशली इन द इंडस्ट्री उसमें सब नोट होता है कि क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर होंगी, क्या ड्यूरेशन है काम की, क्या पेनल्टी क्लॉज है, वगैरह वगैरह। दिस इज़ ऑल इन द स्कोप ऑफ वर्क, दिस इज़ ऑल इन द इनिशियल डिस्कशंस बिटवीन द सेल्स टीम्स, बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर। ये इसे नहीं पता। दिस अगेन शोज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन हिज पार्ट। कितनी रिविजन्स होंगी प्रोडक्ट या सर्विस की, क्या माइलस्टोन्स हैं डिलीवरी के, और फिर पेमेंट के। आफ्टर सेल्स सर्विस मॉडल क्या है, कोई सपोर्ट है या नहीं, जो ये लीगैलिटीज़ हैं वो कौन देखेगा। उसके लिए भी स्किल्स लगेंगी। You need project management skills, people management skills, resourcing skills, delivery management skills, business development skills, legal skills और ना जाने कितना कुछ। कभी कभी इसकी बातों से लगता है कि बस कोई फेरी टेल है। कई लोगों ने ये भी बोला है कि क्लाइंट्स अपने लाके देंगे और फ्रीलांसर्स भी दे देंगे। तो भाई आप क्या सीखोगे इस वर्कशॉप में? पैसे दे दिए, वर्कशॉप अटेंड कर ली, व्हाट आर यू लर्निंग? क्लाइंट्स लाना, फ्रीलांसर्स को सोर्स करना, ये भी तो आना चाहिए, नहीं तो स्केल अप कैसे होगा बिजनेस। ये भाई बस अपना फनल बनाते हैं और फिर कोर्सेज पर कोर्सेज बेचते हैं, दैट्स इट। अब एक और वीडियो देखते हैं, छोटा सा क्लिप देखते हैं इसका। आप ये मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और आपको क्या करना है, आपको मैं एक लिंक देता हूँ मेरी, आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन की एफिलिएट लिंक दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जीरोधा की आप दे सकते हो, आपने दे दिया अपस्टॉक्स का, आपने दे दिया कोई भी एक पर्टिकुलर चीज का आपने लिंक दे दिया उनको। आपने बोला कि भाई आप इस लिंक से डाउनलोड कर लो मेरा, आप ये लिंक ले लो और इससे आप डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन, और उससे आप लॉग इन कर लो, फ्री में हो जाएगा आपका डीमैट अकाउंट ओपन। अब आप टेलीग्राम में आ जाओ, मैं आपको फ्री में कॉल्स दूंगा। क्या मैं आपको दूंगा? मैं आपको फ्री कॉल्स दूंगा। फ्री कॉल्स मतलब किस तरह से कि भाई आप आज निफ्टी का ये बाय करो, आप ये बाय करो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इंट्राडे के कॉल्स। सो दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट
गिविंग आउट स्टॉक कॉल्स ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप जिससे आप कमा सकते हो। तो मेरी रिसर्च में मुझे पता चला दैट दिस इज समथिंग दैट सेबी डजंट लाइक। मैंने अंकुर वारिकू पर वीडियो बनाई थी, उसमें आई कवर्ड कि फिनफ्लुएंसर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स जो मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे थे उन सब पर सेबी क्रैकडाउन करेगी और कर भी रही है। सेबी इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग अ ड्राफ्ट अगेंस्ट फिनफ्लुएंसर्स और बेसिकली फॉर फिनफ्लुएंसर्स, एंड उसकी क्या रेगुलेशंस हैं टू कॉल योरसेल्फ अ फिनफ्लुएंसर, उस ड्राफ्ट पे काम कर रही है। दिस इज हाईली इलीगल कि आप स्टॉक कॉल्स दे रहे हो एंड यू आर नॉट इवन रजिस्टर्ड विद सेबी एज एन एडवाइज़र। ये बंदा खुद भी जेल जाएगा एंड साथ में औरों को भी लेकर जाएगा। अब बात करते हैं हायरिंग एंड फायरिंग की। तो ये बंदा कह रहा है कमीशन बेसिस पर हायर करो। जिसको हायर करोगे हाउ विल यू अश्योर हिम कि क्लाइंट्स हैं या मिल जाएंगे? वो भी भूखा तो नहीं मरना चाहेगा। एंड हाउ विल यू अश्योर कि आपके पास क्वालिटी फ्रीलांसर्स हैं कि जब भी वो कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे इट विल बी कंसिस्टेंट, इट विल हैव अ सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस। वो चीज़ कैसे होगी अगर आप बार बार नए नए फ्रीलांसर्स या इफ़ यू डोंट गेट अ होल्ड ऑफ योर ओल्ड फ्रीलांसर्स, लेट्स से वो कोई प्रोजेक्ट में बिजी है। एंड ये भी एक पॉइंट है, आपके जो रेगुलर फ्रीलांसर्स हैं अगर वो अपने और प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं देन हाउ विल यू मैनेज देयर टाइम एंड हाउ विल यू मैनेज दोज रिसोर्सेज एंड हाउ विल यू गेट दैट काइंड ऑफ क्वालिटी इन योर वर्क। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो फ्रीलांसर इस अपॉर्चुनिटी को एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस ले रहा हो, उसकी क्या गारंटी है? देयर इज़ नो गारंटी, राइट? तो ऐसे थोड़ी आप कुछ भी हायर करोगे और कुछ भी डिलीवर कर दोगे, right? There has to be a time frame for delivery. There has to be a certain level of SLA. There has to be a certain level of quality. अब बात करते हैं कि क्लाइंट के साथ जब आपकी इंटरेक्शन होगी तो कैसे होगा? What is the client expecting? You need to talk sense to get a client. और वो भी नहीं हो पाएगा because this is a no skill agency. तो स्किल तो है ही नहीं। ये भी पॉइंट कवर करते हैं, लेकिन अभी हायरिंग और फायरिंग की बात करते हैं। This kind of talk clearly means that he has not spent time in any organization or a company. Itna rapid change in workforce is not healthy. The company will spend time in ramping up new hires and in minimizing damage from people leaving projects and teams midway. तभी तो देखो कंपनीज कितना कुछ करती हैं टू रिटेन टैलेंट, जैसे पिज़्ज़ा पार्टीज और चलो एनीवे, हायरिंग एंड फायरिंग डिस्टर्ब्स वर्क एंड प्रोजेक्ट्स, ये तो सबको पता है। भाई कह रहा है कि स्किल्स मत सीखो। वाह वाह गाइस, मुझे नहीं लगता दैट अ कस्टमर हु इज़ विलिंग टू स्पेंड थाउजेंड्स और लैक्स ऑन अ प्रोजेक्ट विल जस्ट हैंड ओवर मनी विदाउट हैविंग अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द रिक्वायरमेंट्स। और उस कॉल पर कौन होगा? नो स्किल एजेंसी वाला बंदा। अब ये बताओ कि डिस्कस क्या करेगा? घंटा। कस्टमर रिक्वायरमेंट रखेगा तो नो स्किल एजेंसी को पता भी तो होना चाहिए कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी और सोल्यूशन दैट यू आर प्रॉमिसिंग, एंड इसका बजट क्या होगा, कितने में होगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, वो सब पता होना चाहिए। और वो तभी पता होगा व्हेन यू हैव सम स्किल्स। कस्टमर बोलेगा मुझे पाइथन में C++ एमुलेट करके C हैश चलाना है और फिर रोबोट चलाना है, उसमें SQL डेटाबेस बना दो। भाई पता भी तो हो कि पॉसिबल है भी या नहीं, और उसके लिए स्किल लगेगी। उस टाइम पर AI से पूछने बैठ गए तो हो गया डील क्रैक। दिस क्लियरली शोज हिज नाइविटी एंड लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा एक और बात बताओ, आपने ड्रॉप सर्विसिंग कर ली तो हाउ विल यू मेक श्योर कि क्लाइंट और फ्रीलांसर जो आपने हायर भी कर लिए, चलो सब कुछ चल पड़ा, कि वो दोनों आपकी पीठ पीछे जाकर काम तो नहीं करेंगे? हाउ विल यू स्टॉप द फ्रीलांसर टू कॉन्टैक्ट द क्लाइंट डायरेक्टली? एंड अगर ऐसा हुआ तो आपका तो शेयर गया। Will you be present on each and every call and mediate it? Is that the solution? Then your work is personnel dependent, and truly scalable processes are never personnel dependent. उसमें आप एक कमज़ोर कड़ी होगे because you will need to be present in every call and monitor all communications. And ऐसी communications हद slow होंगी. You will not be agile, your process will not be agile. सोचो, you are working on a project and client के साथ जो भी ईमेल हो रही है वो आपके मैनेजर के थ्रू हो रही है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वाली मेल आई, मेल नंबर 1, मैनेजर ने क्लाइंट को रिमूव किया और ईमेल आपको भेजी। फिर यू रिप्लाइड और आस्क्ड क्वेश्चंस, फिर वही ईमेल क्लाइंट को भेजी। मतलब हर छोटी छोटी क्लैरिफिकेशन के लिए एक एग्रीगेशन और वीक पॉइंट है, वो होगा ये ड्रॉप सर्विसिंग वाला बिना किसी स्किल्स वाला जीत शाह। डू यू थिंक दिस मॉडल इज स्केलेबल? मतलब
कुछ भी बेच दो. I don't know. I'm not comfortable when I went through the videos, when I went through the intros around the No Skill Agency. I don't know. I hope this video जो मैं बना रहा हूँ वो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी लोगों को, बिकॉज आई डोंट नो यार कि ये क्या बिजनेस मॉडल है. ठीक है, ड्रॉप सर्विसिंग होती है. वी हैव सर्विस इंटीग्रेटर्स इन द इंडस्ट्री, यू नो, द एक्सेंचर्स ऑफ द वर्ल्ड, द HCLs ऑफ द वर्ल्ड, द इन्फोसिस ऑफ द वर्ल्ड. बट उसमें ऐसे तो नहीं होता. They don't hire and fire freelancers for projects. They have their own sales team, their own business development team. They have their front-end workers. They have their midline management. They have their executives. सब कुछ होता है यार उसमें. ऐसा नहीं होता कि चलो फाइवर से या किसी और फ्रीलांसर से प्रोजेक्ट पकड़ा और उसमें फ्रीलांसर डाल दिए और चलो जी आज की रोटी कमा ली. आई डोंट नो मैन, मेरे को तो बिल्कुल नहीं जमा है. क्यों ना आप, मैं और हिमांशु जो कि मेरा पार्टनर है. अब ये हिमांशु इसका जो पार्टनर है उसकी भी बात करता है. तो हिमांशु भी जो है इसका पार्टनर, वो भी फनल्स पर काम करता है. फनल कुछ नहीं, बस एक स्मार्ट टर्म है कि लोगों को फंसाओ, फ्री या चीप सेमिनार देकर उसमें सपने दिखाओ, थोड़ा सा इंट्रो दो और फिर बोलो अब मेरी महंगी क्लास ले लो. आई एक्सप्लेन दिस इन अनदर वीडियो विच वॉज ऑन देव कड़वी एंड गैंग एंड ऑल्सो ऑन हिज मेंटर डैन लॉक. उनका भी फनल बेस्ड बिजनेस ही है. सब चूना लगाने आए हैं यहाँ. छोटी सी क्लिप देखते हैं. ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, एप्पल. दिस गाय इज कंपेयरिंग एप्पल विद द लाइक्स ऑफ ओयो के भी प्लेटफॉर्म बेस्ड बनाओ. ओयो और उबर को ये एप्पल से कंपेयर कर रहा है. व्हाट द हेल. सो मच फॉर डिजाइनिंग चिप्स, मैन्युफैक्चरिंग फोन्स, लैपटॉप्स एंड हार्डवेयर, एंड सो मच फॉर बिकमिंग $1 trillion कंपनी. कुछ भी यार, कुछ भी. बस बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम फेंक दो वीडियो में एंड पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड. क्या है भाई ये. चलो अभी फ़ोटोज़ पर नज़र डालते हैं. राइट, ये 3 लोग हैं जो ड्रॉप सर्विसिंग की दुनिया में, यू नो, दे मेकिंग वीडियोस एंड कंटेंट्स एंड दे सेलिंग कोर्सेज. एक है ये यशिका गर्ग, एक है ये हिमांशु अग्रवाल विच इज़ अ पार्टनर ऑफ जीत शाह एज वेल. एंड जीत शाह तो है ही. राइट, इनकी ये सारी फ़ोटोज़ देखो. दे पुट दिस ऑन इंस्टाग्राम एंड इट्स पब्लिकली अवेलेबल. दिस इज़ द सेम जेट if they are flying, that is. और जेट्स वैसे भी फ़ोटोशूट वगैरह के लिए हायर पे मिल जाते हैं, रेंट पर मिल जाते हैं. बट दिस इज़ दैट सेम जेट. जीत शाह की जो पिक्चर है उसमें ये स्प्राइट का कैन देखो, जो ओरिएंटेशन है और जहाँ पे वो पड़ा है, जिस होल्डर में वो पड़ा है, वो ही सेम यशिका गर्ग पिक्चर में भी है. यशिका गर्ग की फ़ोटो देखो, सेम सेटअप, सेम everything is the same. It's the same plane, it's the same jet, and that Sprite can has the same orientation and that same holder, which is a bit, you know, fishy for me. और अगर हिमांशु अग्रवाल की भी फ़ोटो देखो, ये भी ड्रॉप सर्विसिंग, फनल बिजनेस और इन सब चीज़ों में है. AI से फनल बना देंगे, फलाना ढिमकाना. सेम, एवरीथिंग इज़ द सेम. इट्स द सेम एयरक्राफ्ट, इट्स द सेम जेट, एवरीथिंग इज़ द सेम. बस यहाँ पे स्प्राइट की जगह एक बिस्लेरी की बॉटल है. नाउ ठीक है, I mean, I'm not saying that they're not in a private jet or they didn't charter a private jet, but then again, बहुत सस्ते में private jets में photoshoot हो जाती है. And all 3 of these individuals, they have the same jet, the same background, the same, you know, similar expressions, similar stories, and even similar Sprite cans. तो थोड़ा सा मेरे को fishy लगा. छोटा सा क्लिप देखते हैं इसका. ओलंपस जैसे एक कैमरा की कंपनी थी जिस कैमरे से ये शूट हो रहा है, ऐसी एक कंपनी आज से कुछ टाइम पहले उस कंपनी का मार्केट शेयर 70% था. आज वो कंपनी क्लोज हो चुकी है. ये बंदा ओलंपस की बात कर रहा है. पहली बात, ओलंपस नहीं है, ओलंपस है. यू माइट वांट टू फ्रीलांस इट आउट टू अ गुड वीडियो एडिटर, बट एनीवेज ओलंपस क्लोज नहीं हुई है. राइट, ओलंपस का अगर हम देखें, EBITDA देखें, if we look at their earnings and everything, they're still going strong. EBITDA is in the positive, so they are profitable. And camera यार सिर्फ तुम और मेरे जैसे content creators नहीं देखते, right? और या use करते. There's a whole industry behind it. कितने photographers हैं, कितने videographers हैं. पूरी Bollywood, Hollywood, Tollywood, Mollywood, Gollywood, XYZ wood. They use cameras, they use professional grade cameras, you know, Blackmagic design, Red cameras, Olympus, so many cameras out there, Sony and stuff like that. और ये cameras बहुत महंगे होते हैं. So of course, I mean, Olympus का सिर्फ ये एक business नहीं है कि उसने सिर्फ cameras बनाने, right? They have other businesses as well.
सो ओलंपस इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग एज ऑलवेज. इसके फैक्ट्स कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आई डोंट नो वेयर ही गेट्स हिज फैक्ट्स फ्रॉम. बट एनी हाउ आज के लिए इतना ही. देर आर मैनी मोर इनकन्सिस्टेंसीज जो मैंने नोटिस करी हैं, बट फिर ये वीडियो घंटों की बन जाएगी. चलो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लेट मी नो इन द कमेंट्स अबाउट व्हाट यू थिंक ऑफ नो स्किल एजेंसी. क्या आपने जीत शाह का कोई कोर्स अटेंड किया है? अगर किया है तो ज़रूर बताना अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड डू लेट मी नो ऑल ऑफ़ यू कि आप और क्या देखना चाहते हैं चैनल पर. और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश, इफ़ यू आर एंजॉइंग द कंटेंट तो लाइक एंड सब्सक्राइब करने का ज़रूर सोचना. थैंक यू, स्टे ऑसम एंड बाय बाय.